Okay, all of you see chapter depreciation and question number 20. इसमें हमको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है. So first of all you see question on 1st July 2021 ABC Limited purchases 4 machines for rupees 80,000 each. The accounting year of the company ends on 31st March every year. Depreciation is provided at the rate of 15% per annum on original cost. On 1st April 2023, one machine was sold for rupees 50,000 and on 1st January 2025, a second machine was sold for rupees 40,000. Another machine with a higher capacity which cost rupees 2 lakh was purchased on 1st January 2025. You are required to show machinery account and provision for depreciation account for 4 years ending 31st March 2025. Yes, all of you see. हाँ बेटे, फर्स्ट मशीन कब परचेज करिए? 1st July 2021. So 2021 July 1 your first treatment will be machinery account debit to bank. Right here in debit side to bank account 4 machines costing 80,000 each. Yes, sir. So it will be 3,20,000. This is machinery account. Okay, next line. The accounting year of the company ends on 31st March. Okay. every year. After this, Depreciation is provided at the rate 15% per annum on original cost. original cost. Okay, that means OCN. So provision for depreciation account is required to prepare. अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि when we will prepare provision for depreciation account separately, तो depreciation हम machinery account में नहीं लगाएंगे. Depreciation will come in provision for depreciation account. So 2021 July 1 is your purchase. So year end will be on 2022 March 31 and treatment will be same, that is by depreciation account, because you know journal entry will be same, depreciation account debit to provision for depreciation. So calculate depreciation on 3,20,000 at 15% for how many months? 9 months. For 9 months. Yes, 36,000. 36,000. Now we have to close our first year. In first year there will be only this much treatment, 36,000. Debit side also 36,000. 36,000. 2022 March 31 to balance carried down, and on 2022 April 1 write in credit side by balance brought down 36,000. Now same way you have to close machinery account also. 3,20,000 is debit balance, and in credit side same balance will come 2022 March 31 by balance carried down 3,20,000. Total will also come 3,20,000. And in next year, that is on 2022 April 1, it will be your opening balance to balance brought down 3,20,000. Okay, एक चीज का हमको ध्यान रखना है, बल्कि एक जगह पर नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी मशीन हमने किन डेट्स में सेल करी है और व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. यस. On 1st April 2023, one machine was sold for 50,000. And one on which date beta? First 1st April 2023, costing rupees 50,000. 50,000. ठीक है. फर्स्ट अप्रैल 23 को 50,000 रुपीज की मशीन सेल करी. दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर. तो अभी इस ईयर में हम 2022-2023 ईयर में आ गए. तो 2022-2023 में वंस अगेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली. ईयर एंड हो जाएगा 2023 March 31 and once again we will write same treatment, that is by depreciation account 48,000. 48,000. Method is original cost, but this time depreciation will be charged for full year. So 3,20,000 is cost of 4 machines. 3,20,000 into 15% will be 48,000. ठीक है. इसका टोटल 84,000.
84,000. Write in debit side also 84,000. 2023 March 31, the same will be your closing balance 84,000. 2023 April 1 opening balance, buy balance brought down 84,000. Okay, same way we have to close machinery account. Same way we have to close machinery account 3,20,000. 2023 March 31 buy balance carried down 3,20,000. 3,20,000. 2023 April 1 to balance brought down 3,20,000. मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ हम अकाउंटिंग ज्यादा कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ज्यादा लिख रहे हैं. बाकी आप देखो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेचर की अकाउंटिंग थोड़ी हो रही है. आप सिंपल ट्रीटमेंट देखिए. मशीनरी अकाउंट में ऑन जुलाई 1 2021 आई हैव रिटन टू बैंक, क्योंकि आपने 4 मशीन्स खरीदी थी 80,000 ईच की, 3,20,000. जब तक आप फर्दर मशीनरी खरीदोगे नहीं या सेल नहीं करोगे तब तक मशीनरी अकाउंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आएगा. 3,20,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस बना, यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस हुआ. फिर आपने ईयर 22-23 में 20. हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि आप देखो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ हमने 2 बैंक एक ट्रीटमेंट लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है. ठीक, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आ रहा, बट हाँ अकाउंटिंग करनी पड़ रही थोड़ी सी आपको. अच्छा, सेम वे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं. फर्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिखा 9 मंथ का 36,000. इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट बिकॉज कैलकुलेटर इज अलाउड. आपने थोड़ी करना है, मशीन जो आपके पास है उसने करना है. 3,20,000 इंटू 15% इंटू 9/12 करेंगे, 36,000 विल कम. उसके बाद आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं सिंपली. टू बैलेंस कैरिड डाउन, सेम आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया. फिर आप नेक्स्ट ईयर में आ गए. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में 3,20,000 पे इस बार मीन सेकेंड ईयर में आप 15% डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा दीजिए, दैट विल बी 48,000. फिर ये टोटल हो गया. ठीक, नाउ यू आर इन 2023-2024 और अब हम शायद फर्स्ट मशीन को बेच रहे हैं. वी हैव 4 machines. आउट ऑफ दीज 4 machines वी आर गोइंग टू सेल मशीन नंबर 1. हाँ, तो मशीन नंबर 1 ऑन 1st April 2023 फॉर ₹50,000. ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो फिर यहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी आपको. दिस मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1st July 2021 कॉस्टिंग ₹80,000. 3,20,000 4 machines की कॉस्ट है ना. सिंगल मशीन की कॉस्ट इज 80,000. तो 80,000 पे 15% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 9,000. देन क्लोजिंग बैलेंस 71,000. 1/4/2022 71,000. Yes, 71,000 on 1/4/2022. 10,650. 10,000. 650. आपने शायद डिमिनिशिंग बैलेंस लगा दिया. कैलकुलेट ऑन 80,000. 80,000 into 15%. 12,000. It's 12,000. Don't worry. होता है, गलतियां होती हैं बच्चों से. 71 minus 12,000 equals to 68,000. 68,000. Okay. On 1, Sir, 59,000. it's 50. 71,000 minus 12,000 equals to 59,000. On 1/4/2023, 59,000 is opening balance of machine number 1. और हम इस दिन इस मशीन को सेल करने जा रहे हैं. हमें एक्चुअली बुक वैल्यू तो चाहिए थी ना, इसलिए ये चार्ट बनाया गया. तो 59,000 इज बुक वैल्यू है ना. जिस दिन हम मशीन को सेल करते हैं उस दिन जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज बुक वैल्यू. अब हमने सेल कितने में किया 50,000. तो 59,000 माइनस 50,000 दिस इज सेलिंग प्राइस. तो आपको 9,000 का लॉस हो गया. ओके. अच्छा, बिसाइड्स दिस हमको एक चीज और चाहिए होती है
दैट इज टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस मशीन। जो मशीन आप सेल कर रहे हैं 80,000 की, उस मशीन पे आपने अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो भी हमें चाहिए होता है। वो यहां से मिल गया डेप्रिसिएशन चार्ज से, तो 12 + 9 21,000। अब आप अकाउंटिंग देखिए, 21,000 इज टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2023 अप्रैल 1 जिस दिन आप मशीन को सेल कर रहे हैं, आप टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 21,000 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर मशीनरी जिसको आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, विच इज 21,000। ओके, और जब ये ट्रांसफर होके आएगा, आप एंट्री देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो इसका ट्रीटमेंट मशीनरी अकाउंट में आ गया 2023 अप्रैल 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन which is 21,000. Selling price bank account debit to machinery by bank account, selling price is 50,000 and there is a loss of rupees 9,000, so write by loss on sale rupees 9,000। और फटाक से एक बार टोटल करके देखो ये 80,000 हो रहा है या नहीं। तो 80,000 की मशीन थी, आपने इसको 1 ईयर 9 मंथ यूज किया, 21,000 टोटल डेप्रिसिएशन लगा, 50,000 में सेल कर दिया और 9,000 आपका लॉस हो गया। ठीक है, हमने न्यू मशीनरी अभी तो नहीं खरीदी है, ठीक है। नाउ वी हैव टू क्लोज दिस ईयर 3,20,000 डेबिट टोटल, सेम टोटल विल कम हियर इन क्रेडिट साइड 3,20,000, उसमें से आप 80 माइनस कर देंगे तो नाउ 240। हाँ, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 3 मशीन्स। बाय बैलेंस कैरी डाउन राइट ईयर 2024 मार्च 31। और अभी आपको जो रिमेनिंग मशीनरीज हैं आपकी, स्टिल यू हैव 3 मशीनरीज, उन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये 2,40,000 इनकी वैल्यू है, 80,000 की एक मशीन है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 3 मशीन्स की वैल्यू 83 2,40,000 into 15% 36,000। बस अब आप इस ईयर को क्लोज करेंगे। 36 + 84 1,20,000। 120, Yes sir। 120 minus 21 99,000। 99,000। This is closing balance 2024 March 31 to balance carried down right here 2024 April 1 by balance brought down 99,000। Yes, read next. What is next? And on 1st January 2025, a second machine was sold for 40,000. Yes, we are selling second machinery also, M2, on which date? 1st January 2025, costing rupees 40,000. 40,000। बेटा एक चार्ट आपको और बनाना पड़ेगा, देखो। This machinery was also purchased on 1st July 2021, costing rupees 80,000। डेप्रिसिएशन आपने लगाया 9,000, वैल्यू आ गई 71,000। 1st April 2022 71,000, डेप्रिसिएशन लगाया आपने 12,000, वैल्यू आ गई 59,000। फिर 1st April 2023 59,000, डेप्रिसिएशन 12,000, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट है, तो 59 minus 12 47,000। 1st April 2024 47,000। अच्छा, we are in this year only ना? We are in this year only, and on 1st January 2025, that means after how many months? 11. After 9 months. 1st January 2025 means after 9 months. So 80,000 into 15% into 9 by 12. Once again 9,000 will come. 47 minus 9. 38,000। 38,000. This is book value. What is selling price? 40,000 is selling price. So there is a gain of rupees 2,000. Check your answer.
गेन है, Yes, sir. 2000 रुपीज का गेन है, ठीक है, ये आ गया समझ में। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने देखिए नई करी है, वो ये कि ईयर 24-25 में ये 9000 डेप्रिसिएशन आपने करंट ईयर में चार्ज किया है। हाउ मच डेप्रिसिएशन यू हैव चार्ज? 9000 डेप्रिसिएशन। ये आपको यहां लिखना होगा 2025 जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9000, ठीक है। अब यहां पर आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा डेप्रिसिएशन कुछ हमने पिछली वाले मशीन जब सेल करी थी तब नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो 1 अप्रैल को सेल कर दी थी। देखिए 1 अप्रैल को सेल करी थी, अगर 1 मई को भी सेल करी होती तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा के और वो लिखते, बट ये वाली मशीनरी आपने 1 जनवरी को सेल करी, दैट मींस 9 मंथ यूज करने के बाद तो करंट ईयर का 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। दिस डेप्रिसिएशन इज ऑन मशीन नंबर 2। अब फिर आप आएंगे 2025 डेबिट साइड में जनवरी 1 टू मशीनरी अकाउंट और टोटल डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपको पहले ऐड करना पड़ेगा 42,000, राइट हियर 42,000, and same way this value will come on 2025 January 1 in machinery account by provision for depreciation account 42,000 as well as selling price by bank account rupees 40,000। और आपको देखो क्लियर कट दिख रहा है 42 और 40 क्लियर कट दिख रहा है ना, 82 हो रहा है, so that means 2000 rupees का gain है, that gain will come in debit side 2025 January 1 to gain on sale rupees 2000। So like this 3 treatments will come। I think one more purchase is also there, Yes, sir. on which date? 1st January 2025. To bank account, this is machine number 5, 4 पहले थी, मशीन नंबर 5 for rupees 2 lakh. 2 लाख। तो अब आप मशीनरी अकाउंट को इजीली क्लोज कर सकते हो। अच्छा, आपने ओपनिंग बैलेंस तो लिखा ही नहीं था। 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। डेबिट टोटल इज 240 प्लस 2 440 प्लस 2 442 442 minus 82, so closing balance will be 3,60,000। हाँ, 2025 मार्च 31, बस डेप्रिसिएशन लगाना रह गया मार्च 31। जो रिमेनिंग मशीनरीज आपके पास बची हुई हैं, 2 machines 24,000, 80,000 की 2 machines बची है ना, 1,60,000 into 15% will be 24,000 and machine number 5 जो आपने 2 लाख की खरीदी है जनवरी 1 को, 2 लाख into 15% into 3/12 7,500. 7,500, total will be 31,500। Yes, sir. बस इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए। क्रेडिट टोटल 1,39,500. 1,39,500, 1,39,500 minus 42,000, this will be your closing balance, how much? 97,500। इस तरीके से मशीनरी जब आप सेल करोगे तो आप वर्किंग नोट जरूर बना लेना, बिकॉज वर्किंग नोट बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अकाउंटिंग बहुत खास नहीं है, बट हाँ ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन। थैंक यू।